Good morning, students. How are you? Are you fine? अच्छे से आप लोग कोरोना का ध्यान रख रहे हैं। कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है, इसलिए आप लोग अपनी सेफ्टी पर ध्यान दें। मुंह को कवर करें, हाथ धोते रहें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, घूमने से बचें और जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ बिल्कुल न जाएं। और चुपचाप जहाँ है वहाँ पड़े रहें, अपने घरों में जहाँ भी हैं। धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें, किताबें आपको मिल गई हैं। जैसा कि हम लोग जो है अब तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Today we are going to start the new chapter, polynomials. In this chapter we will learn the concept of polynomials and the characteristics of polynomials, including remainder theorem, factor theorem, zeros of the polynomials. All these things we shall study in this chapter. So let us see the concept of polynomials. How can we define a polynomial and how we can say that there is a difference between algebraic expression and polynomials. So let us see. polynomials को हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। इसमें कई पद होता है। An algebraic expression in which, this is the definition and theoretical concept, an algebraic expression in which the exponent of variables of each term, exponent of variables of each term is a whole number. Here I put underline, just under the whole number. I hope that you are well known about an algebraic expression. I want to remind you, algebraic expressions are the combination of variables and numbers, you can say numerals, under the certain conditions. कुछ निश्चित कंडीशन के अनुसार वेरिएबल्स और न्यूमरल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? algebraic expression बोलते हैं. So an algebraic expression in which the exponent of variables of each term is a whole number, then the expression is said to be a polynomial. यदि ऐसा है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसके ईच टर्म में ईच वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यदि वो होल नंबर है तो आप उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कह सकते हैं. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल 3x + 2. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें 2 टर्म है. यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसका एक्सपोनेंट 1 है और 1 क्या है? होल नंबर है. y - 3, इसमें जो वेरिएबल है y है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है. 1 रहता है तो हम लोग लिखते नहीं. इन दिस एक्सप्रेशन 2x² + 3x + 1, exponent is 2, that is whole number, so this is also polynomial, this is also polynomial, this is also polynomial, and this is also polynomial because the exponent of variable of each term is whole number. algebraic expression क्या होता है हमने बता दिया आपको. अब देखिए algebraic expression और polynomials, this is your algebraic expression and this is polynomials में difference क्या है? algebraic expressions are combination of variables and numbers under certain conditions. There is no any restriction of exponents. algebraic expression में एक्सपोनेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड नहीं है.
किसी टर्म का एक्सपोनेंट होल नंबर हो सकता है, किसी टर्म का एक्सपोनेंट इंटीजर हो सकता है। किसी टर्म का नंबर एक्सपोनेंट होल नंबर हो सकता है, किसी इसको आप लिखेंगे एक्सपोनेंट के रूप में तो x⁻³ होगा, दैट इज इंटीजर। और यहाँ आप देखिए इसे आप लिखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या हो रहा है, रेशनल नंबर हो रहा है। स्क्वायर रूट x मीन्स x⁻⁴ रेशनल नंबर हो सकता है, तो वो रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल के ईच टर्म में ईच वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है अगर होल नंबर होगा तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। सो पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या है, कंडीशन है। इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। So polynomials in one variable, the algebraic expression of one variable in which the exponent of variable of each term is a whole number is said to be a polynomial in one variable. Example: 4x² plus x plus 3, y² plus 3y plus 8, 5t³ minus t² plus 3t plus 7, 9z² 4z minus 3x power 4 plus 1, like that. So these are the पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स में एक टर्म है तो मोनोमियल्स, दो टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स तो ट्राइनोमियल, आफ्टर दैट पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स। now we can understand the degree of polynomial. what is the concept of degree of polynomial? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसे हम लोग जानेंगे। The highest exponent of the variable is called the degree of polynomials. जो पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल होंगे आपके पास उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। The highest exponent of the variable is called the degree of polynomial. एज गिवन बिलो देख सकते हैं, डिग्री ऑफ 4x³ plus 3x² minus x plus 3, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री आपको बताना है। इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट को आप चेक करेंगे, दैट इज 4x³ टर्म, और इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो है 3। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म दिस एंड दैट इज 3। डिग्री ऑफ 3y² plus 4 minus 7y³ plus 5y, इसमें रैंडमली लिखा गया, ऑर्डर में नहीं है। तो इसका आपको डिग्री बताना है तो आप किसके पास जाएंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म के पास जाएंगे। और यहाँ पर जो टर्म है -7y³ है, तो इस कोफिशिएंट से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सीधे वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखेंगे और वो कितना है 3, तो यहाँ भी आंसर 3 है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न the concept of polynomials, expressions, difference between polynomials and expression, and you can write the degree of polynomials. So in this topic, this much only. In another topic, in another class, we will learn something more about polynomials. Thank you very much.